شکریہ جناب اسپیکر. کیس کی سب سے پہلے تو میں اس اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو ڈاکٹروں کی گرفتاری کی بات کی جی اس کے لیے بعد میں آ رہا ہے منوان. میں ان کے بارے میں کچھ کس چیز میں جی ان کے بارے میں کچھ کیسے یہ جو ڈاکٹرز کو اریسٹ کیا گیا ان کو پولیس بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو قانون توڑنے بچانے کے لیے رکھا گیا ہے. پولیس بھی کبھی ہم لوگ بھی اس کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن آج جو ہوا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو میں ان ڈاکٹرز کو رہا کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جناب اسپیکر میرے خیال سے اگر ہوم منسٹر صاحب خود چلے جائیں اس ایشو کو دیکھ لیں, صرف رہائی نہیں گرفتار کس لیے کیا کارروائی ہونی چاہیے. اس کو دیکھ لیں گے. گرفتار کس لیے کی ہے؟ آپ لوگ نہ مسئلہ حل کرنے میں خوش ہوتے ہو نہ مسئلہ حل نہ کرنے میں خوش ہوتے ہو. نہیں آپ یہ بھی ہاؤس کو بتا دیں, آپ ہاؤس کو بتا دیں کس کے کہنے پہ کیا اور کس میں بے دردی سے گرفتار کیا گیا, اس کا قصور کیا تھا, کس کے کہنے پہ کیا, کیوں کیا, ان کا قصور سر کیا رپورٹ منگوا لیں گے, مجھے ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے, لیکن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کرنے کا اگر گناہ کیا تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر جو قصوروار پائے گیا ضرور قانون اس کے خلاف. جناب اسپیکر صاحب میں آ رہا تھا سیکریٹریٹ سے گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں میں ہماری بہنوں آپ کو بھی لے جاتے تو اچھا تھا. جس بے دردی سے انہیں گرفتار کیا گیا اس کی ہم ضرورت کرتے ہیں. لانگوں کو کوئی بعید نہیں ہے, وہ جو کچھ کرے. میرے خیال سے ان کی رضامندی سے گرفتار کرنے لگتا تو یہی ہے. نہیں ویسے اگر ان کا قصور تھا گرفتار کیا ہے پھر تو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جسٹیفیکیشن دے کیوں گرفتار کیا آپ کو؟ جو قانون کی خلاف ورزی ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے نیگلیجبل ہے. اسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں اسمبلی کے گیٹ پر اپنی آواز پہنچاتا ہے, ان کو جس طریقے سے جی ضرور جس بے دردی سے انہیں گرفتار کیا ہے, اس میں ہماری بچیاں تھی سر, اس میں ہمارے ڈاکٹرز تھے, ان کی اتنی بے عزتی سے انہیں گرفتار کیا گیا. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ایجنڈا چلائیں, ایجنڈے کی جی ضرور جناب. جناب اسپیکر, آج جو واقعہ ہوا ہے خصوصاً ڈاکٹروں کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ہمارے ملک میں صوبے میں اظہار آزادی سب کے لیے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے انتہائی جینون ہے. جو باتیں پچھلی گورنمنٹ نے جو ایکٹ منظور کیا تھا بولار میڈیکل کالج کا, اس میں پیورلی بی ایم سی کو ایک پرائیویٹائزڈ ایک کالج یا یونیورسٹی بنایا جا رہا ہے. اس بات اس میں ہماری ملاقات بھی ڈاکٹروں کے ساتھ ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک نااہل ناقابل وی سی وہاں پہ پوسٹ ہوئے ہیں, جن کی پشت بنائی گورنر صاحب کی حاصل ہے. ہم نے اپنے تحفظات, کل کالج پارٹنرز کی میٹنگ ہوئی تھی, اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. چونکہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, یہاں بیٹھا ہوتا ہے, اور ہمارے خلاف اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے ہو, اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے گورنر. میں تو آئینی سربراہ, لیکن آپ یہ اس میں بات کریں. آئینی سربراہ اسپیکر اور گورنر کے خلاف اسمبلی میں بات نہیں کرتا, لیکن آپ مین ایشو پہ آ جائیں. یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہوا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ چونکہ 18ویں ترمیم میں پورے پاکستان میں یونیورسٹیز صوبوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے عین روح کے مطابق اس کو جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ, لیکن 1.5 سال ہو گیا آپ کی گورنمنٹ, بی ایم سی کو پرائیویٹائزر سے بچائیں. کیونکہ 1.5 سال ہوا ہے اس کو. مجھے بات کرنے دیں, آپ بولیں یا میں بولتا ہوں.
स्पीकर को ये नहीं कहते आप बोले मैंने कहा 1.5 साल हुए आप लोग इस पे बात कर रहे हैं स्पीकर साहब अपना सीट दे दे उन्हें आ जाए आप इधर बैठ जाए बात कर रहा हूँ तो इसको मुझे बोलने दे नहीं मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये 1.5 साल से इशू चल रहा है और कई दफा गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंश्योर कराया कि ये चीज हम कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं आइन में क्यों अमेंडमेंट नहीं हो रहा है और अपनी लैंग्वेज को जारी करें और कोशिश कर रहे हैं बात करने का तरीका भी सही करें आप स्पीकर से इस तरह बात नहीं कर सकते मैंने क्या कहा आप कह रहे हैं आप बात करें आपके मैं आपको आपके बयान बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये 1.5 साल में क्यों नहीं किया है नहीं मैं उसको बोल रहा हूँ ना बता रहा हूँ बोल रहा फिर आप इस तरह अपने बयान एक तो गलत बयान ही करते हैं फ्लोर पे गलत वो करते हैं फिर स्पीकर को भी आप कहते हैं आप बात करें मैं वजाहत कर रहा हूँ उसका मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट दिया कि 1.5 साल में क्यों इसका मैं इसका वजाहत कर रहा हूँ ना हाँ जी क्यों वजाहत करूँ क्या काम तो माजरत करे स्पीकर से अगर आप मुझे बोलने में जब मैं बैठ जाता तो मसला नहीं बैठ जाए आप बोलने का आपका वो नहीं है किया था माजरत किया था हमने ये देखिए आपको कोई इंसान कम नहीं होता है कि अगर कोई गलत ये कस्टोडियन ऐसा नहीं होता है आपसे पूछा मैंने कहा आपने ये नहीं कहा आपने बात करने का ढंग और लैंग्वेज ये नहीं है कि आप क्या करने देखिए एक तो गवर्नमेंट गलती कर रहा है लोगों को गिरफ्तार कर रहा है आप गवर्नमेंट हो गए मजम्मत कर रहे हैं सवाल को कौन सा मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ नहीं मजम्मत कर रहे हैं गवर्नमेंट ने किया गवर्नमेंट को क्या गवर्नमेंट ने ये एक अमल किया है चीजें नहीं होना चाहिए था उसे गवर्नमेंट कर रही है नहीं करेंगे बात मेरे स्पीकर साहब से बात कर रहा हूँ नहीं हम उसकी इज्जत तो क्या होता है सबको नहीं चाहिए जब हमारे अपोजिशन से कोई हो जाता है हमने बरमना उससे देखो, माजरत करते हैं सीनियर पॉलिटिशियन है आपको रूल रेगुलेशन सारे पता है बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है बात करने का अंदाज क्या होता है इस तरह की बात मैंने नहीं की जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपके कहने का मकसद क्या है गलत बात कर रहे हैं गैर जिस तरह अपोजिशन ने उसकी मजम्मत की उसी तरह मैं भी उसकी मजम्मत कर रहा हूँ और मैं ये बरमला कहता हूँ कि काफी वो है जनाब स्पीकर साहब सीनादोरी और दीदा दिलेरी भी होती है लेकिन गवर्नमेंट भी कह रहा है कि मजम्मत करते हैं लेकिन क्यों किया है सही है इस तरह की बातें मैं कहता हूँ इस फ्लोर पे नहीं तो फिर इस तरह के वाक्य तो हो क्यों रहे हैं एक तो गलत है आप तो वीसी को कैसे नायब कह सकते हो क्यों नायब है क्यों वीसी को नहीं वीसी को क्या वीसी क्या उस पे वजाहत चाहता हूँ क्योंकि कल हमारे दौजान हमारे भाई है सीनियर पॉलिटिशियन है जिम्मेदार बंदा है यकीनन में होते हैं अपोजिशन की भी मीटिंग्स होती है हुकूमत की भी मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स का आप हवाला असेंबली फ्लोर पे उस पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कल हमारे दरमियान इस मामले पे डिटेल में बात हुई थी और जहाँ तक 18वीं आईनी तरमीम के जरिए से हायर एजुकेशन का मसला है जनाब स्पीकर इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन मौजूद है और इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन मौजूद है और वहाँ पे कल हमारी एक बात इत्तेफाक राय से हुई कि गवर्नर साहब से बात की जाएगी गवर्नर साहब इस मामले पे सीएम साहब होंगे गवर्नर साहब होंगे वीसी को भी बुला लेंगे जो भी खदशात और मामलात है और मुश्किलात है उसको हल करने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी हमने एक फरीक को बेशक सुना है एक फरीक को हमने सुना तक नहीं है तो यकीनन जब हम आमने सामने बैठ जाएंगे आमने सामने इस मामले पे खुल के बात करेंगे तो जो साहब इसमें ये है कि आपके पास गुंजाइश है आप गवर्नर साहब को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप इसमें अमेंडमेंट करें बीएमसी की बजाय कोई और यूनिवर्सिटी दे दें तुर्बा दे दें गुजरात दे दें आपका मसला हल हो जाएगा जनाब स्पीकर इस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मौजूद है खासकर 18वीं तरमीम के इसी मामले पे तो ये आसान है कि अमेंडमेंट की जरूरत है सिंध हाई कोर्ट के लेकिन इस पे हम कंसेंसस बनाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म इसके लिए बना दे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इसमें ये है, मैं अपने भाई जिया साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह इन्होंने अभी डॉक्टरों की रिहाई का ऐलान किया, एक अच्छा ऐलान इन्होंने किया, एक और रिक्वेस्ट इसी से है, जो पहले मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इस पे बात करना चाह रहा था, फिर आपने कहा कि इस पे मामूल के मुताबिक एजेंडे पे आके फिर बात की जाएगी। तो जनाब जिया लांगो इंटीरियर मिनिस्टर से एक और रिक्वेस्ट है, परसों चमन में मावरा आईन मावरा अदालत बगैर एफआईआर के फिर बंदे उठाए गए और उसके उठाने के बाद कल से फिर मेन शाखा बंद है। तो या अगर उसके खिलाफ कोई केस है, खुदा न खास्ता उसके खिलाफ कोई मसला है, तो वो सामने ला के पेश करके बेशक उसको उसी में उसका ट्रायल होना चाहिए, अदालती ट्रायल होना चाहिए। अगर बगैर ट्रायल के बगैर एफआईआर के जहाँ यहाँ तक के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं हो, फिर हमें जो थोड़ी बहुत कहीं इधर उधर से मालूमात मिली कि ये आटे की स्मगलिंग का कोई मामला है, तो क्या ये लोग आसमानों से क्रॉस करके बॉर्डर हटा ले गए, जमीन के अंदर से क्रॉस करके ले अफगानिस्तान तक पहुंचाएंगे? तो कम अज कम उन एहलकारों को इसमें फिर बुला के उनसे पूछगछ होनी चाहिए जो इस सारे मामले में कसूरवार है। तो हम लोग ये तो बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी के साथ बात करके ये काम कर ही नहीं सकते। और इससे पहले जो फैसला खान उठाया गया, रोड्स बंद थे, फिर उसको अदालत में पेश किया गया, अभी 2-3 दिन के बाद फिर ये अदालत में चले जाएंगे। तो कम अज कम पहले आप कानूनी कार्रवाई पूरी करके गिरफ्तारी अमल में ला के, ताकि किसी के लिए अदालत का दरवाजा भी तो खुला। जब आप इस तरह की काम करके, इस तरह की गिरफ्तारियां करके, जिससे पूरा शहर, जिसका असर पूरे इलाके में फिर मुरतब होता है, कल से कोजक चमन शाहरा बंद है और कोई उसको ये भी। इसमें ये है कि गवर्नमेंट भी इसकी मजम्मत कर रही है, अपोजिशन की तरफ से भी है। जिया लांगो साहब मेहरबानी करके इसका वो करें कि आप खुद, गवर्नमेंट ये कह रहा है कि यह अफसोसनाक वाक़या और होना नहीं चाहिए था, फिर हुआ क्यों है? इस तरह के नहीं होने चाहिए, एहतजाज सबको वो है। और इसमें मैं किसी में कंट्रोवर्शियल में नहीं जाना चाहिए हमें कि इस तरह की कहानी, हमारे बच्चे हैं और मुसलसल 1 साल से वो रुल रहे हैं और मुतवातर मुख्तलिफ ऑफिस को विज़िट कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर चैम्बर को, सारे ये आ रहे हैं और वो अपने 1 साल से मजबूर हो कि वो गेट तक पहुँचे हैं। इसमें हमें चाहिए कि हम इसमें ज़रूरी अमेंडमेंट करके इसका जो मसले को पूरी तौर पर हल करें और जो छोटे छोटे इशू हैं इनको हम आगे नहीं ले जाएं। जी एक मिनट, इसमें मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं मंगवाई किस उसके तहत इनको पकड़ा गया, क्या कसूर है, लेकिन पुलिस भी इधर लोग बहुत एहतजाज करते हैं, हर को नहीं पकड़ती। जरूर हम कभी जब कानून जब हाउस से बात करते हैं तो सारे डिटेल आपके पास होनी चाहिए। जी, तो अभी जरूर एहतजाज में 128 बंदे का कोई क्रिमिनल वो तो नहीं हुआ होगा, एहतजाज की दफातों को उसको आपके हाउस में ये आया नोटिस में हमारे, तो उसकी खातिर हम इसको मैंने रिहा करने का ऐलान किया। इसमें रिपोर्ट मंगवा लेंगे, उस रिपोर्ट से भी आपको